हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सिमरन थापर। लास्ट क्लास में हमने रोल्स थ्योरम डिस्कस करा था। इस लेक्चर में हम मीन वैल्यू थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, एप्लीकेशंस टू मोनोटोनिक फंक्शंस देखेंगे और इनइक्वालिटीज देखेंगे। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो स्टेटमेंट ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। Let f be a function defined on the closed interval a comma b such that it satisfies the following conditions. So दो condition satisfy करता हूँ. First condition है fx is continuous in closed interval ab. Second is fx is derivable, or I can say fx is differentiable in open interval ab. Then there exists at least one point c which belong to open interval ab such that f dash c is equals to fb माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो पहली कंडीशन है कि f कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन, f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, सो देयर एग्जिस्ट c विच बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी such that f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, वेरीफाई Lagrange's mean value theorem for the function fx is equals to square root x square minus 4 in the interval 2, 4। So solution, fx की जो वैल्यूज होंगी वो किस टाइप की होंगी? रियल होंगी और डिस्टिंक्ट भी होंगी फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2, 4। तो क्लियरली fx फंक्शन जो हमारा है वो कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल 2, 4 में। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, fx इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 2, 4। सेकेंड कंडीशन, फंक्शन को डिफरेंशिएबल भी होना है ओपन इंटरवल 2, 4 में। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। f डैश x इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 विच इज 2x। सो दिस इज इक्वल टू x अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4। एंड पॉइंट्स को छोड़ दें, यानी कि 2 और 4 को छोड़ दें, तो बाकी पूरे इंटरवल पे f डैश x हमारा डिफाइंड है। So which exists for each x belongs to open interval 2, 4. Therefore, fx is differentiable in open interval 2, 4. So Lagrange mean value theorem की जो दो conditions थी वो दोनों ही satisfy हो रही हैं। So there exist, so by Lagrange's mean value theorem, there exists c belongs to open interval 2, 4 such that f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a। So this implies f dash c, f dash x क्या निकला है? x upon square root x square minus 4। So c upon square root c square minus 4 equal to fb minus fa, f4 minus f2 upon 4 minus 2। फंक्शन हमारे पास था स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। f2 और f4 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो f2 स्क्वायर रूट
2 square minus 4. So square root 4 minus 4 is equals to 0. F4 निकालते हैं. So square root 4 square minus 4, square root 16 minus 4 which is square root 12. Square root 12 को क्या लिख सकते हैं? It can be written as 2 square root 3. So this implies c by square root c square minus 4 is equals to f4 2 square root 3 minus f2 0 by 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. So c by square root c square minus 4 is equals to root 3. c की वैल्यू निकालनी है. So c is equals to square root 3 into square root c square minus 4. Now squaring both the sides. So we get c square is equals to 3 into c square minus 4. So this implies c square is equals to 3c square minus 12. Simplify करते हैं इसको. 3c square minus c square is equals to 12. 2c square is equals to 12. So c square is equals to 12 by 2, 6. c is equals to plus minus square root 6. c की दो वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट 6 और नेगेटिव स्क्वायर रूट 6. c किसको बिलोंग करता है? ओपन इंटरवल 2,4 को. सो क्लियरली नेगेटिव वाली वैल्यू तो हम निग्लेक्ट कर देंगे. सो डिस्कार्डिंग c is equals to minus square root 6 because c belong to open interval 2,4. Therefore, c is equals to square root 6 which belongs to open interval 2,4. So hence, Lagrange's mean value theorem is verified. ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है. नेक्स्ट अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो PYQ में पूछे गए हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Verify the mean value theorem for the functions. बेसिकली Lagrange's mean value theorem यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं. Verify Lagrange's mean value theorem for the following functions. PYQ में आए थे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. इनको डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज fx is equals to x cube in closed interval a, b. सॉरी, ये मैंने क्वेश्चन 1 लिख दिया. क्वेश्चन 4 है fx is equals to x cube minus 5x square minus 3x, a is equals to 1 and b is equals to 3. So Lagrange's mean value theorem की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? ये फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में. क्लियरली पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस होगा. सो एज fx is a polynomial function, therefore fx is continuous in closed interval 1, 3. सेकेंड कंडीशन fx डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल 1, 3 में. सो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. f डैश x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3. दिस क्लियरली एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू between 1, 3, this interval. Therefore, fx is differentiable
in open interval 1, 3. So as both conditions of Lagrange's mean value theorem is satisfied, therefore by Lagrange's mean value theorem, there exists C which belongs to open interval 1, 3 such that f dash C is equals to fb minus fa upon b minus a. So f dash C, f dash x क्या निकाला है 3x square minus 10x minus 3. So this is 3c square minus 10c minus 3 equal to fb minus fa. So f3 minus f1 by 3 minus 1. fx फंक्शन क्या था x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x. इसका डेरिवेटिव निकाला, सॉरी हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है f3 और f1 की. सो f1 की वैल्यू 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3, दिस इज माइनस 7. और वैल्यू निकालनी है f3 की 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3. 3 क्यूब 27 माइनस 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45 माइनस 9. So 27 minus 54 which is minus 27. So f3 की वैल्यू है minus 27, f1 की वैल्यू minus 7 है. So minus minus plus 7 upon 2 minus 20 by 2. So this is equal to minus 10. So this implies 3c square minus 10c minus 3 is equals to minus 10. माइनस 9 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे. 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू 0. 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व करते हैं इसको. 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0. सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए मैंने, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 3c, c माइनस 1, यहाँ से माइनस 7 कॉमन, c माइनस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज 3c माइनस 7 इंटू c माइनस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज 3c माइनस 7 इक्वल टू 0 और c इज इक्वल्स टू 1. सो c इज इक्वल्स टू 7 बाई 3 और c इक्वल टू 1. ये दो वैल्यूज आई हैं. अब हमने क्या देखना होता है कि ओपन इंटरवल 1, 3 को जो बिलोंग करे वो हमारी c की वैल्यू होगी. ये तो c इक्वल टू 1 आ रहा है, सो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा. सो c इज इक्वल्स टू 7 बाई 3 विच क्लियरली बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1, 3. हेंस Lagrange's mean value theorem is verified. Next question number 5. fx is equals to x into x minus 1 into x minus 2. A is equals to 0, b is equals to half. So solution. Again fx इस टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल 0, 1/2 में. So as f is a polynomial function, therefore it is continuous in closed interval 0, 1/2. सेकेंड fx डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल 0, में. सो एफ डैश एक्स निकालते हैं. सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. x का डिफरेंशिएशन करें तो 1 आएगा इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एज इट इज प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 इज 1. सो एफ डैश एक्स हमारा क्लियरली एग्जिस्ट कर रहा है. इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं.
So x square minus 2x minus x plus 2 plus x square minus 2x plus x square minus x. So x square वाली टर्म्स कंबाइन करी तो 3x square, x वाली टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं माइनस 6x प्लस 2. ठीक है. So fx is differentiable in open interval 0, half. Therefore, by Lagrange's mean value theorem, there exists C which belong to open interval 0, 1/2 such that f dash C is equals to fb minus fa upon b minus a. So this implies f dash C ये बन जाएगा 3c square minus 6c plus 2 equal to f 1/2 minus f0 by 1/2 minus 0. fx फंक्शन था x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. So f0 minus 1 into minus 2 into minus 3 which is minus 6. f 1/2 is equals to 1/2 minus 1 into 1/2 minus 2 into 1/2 minus 3. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1/2 minus 1 minus 1/2 ये हो जाएगा minus 3/2 minus 5/2. So this will be minus 15/8. क्वेश्चन ये वाला था, मैंने गलती से 6 क्वेश्चन लिख दिया, वो भी सिमिलर था. ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर दूं यहाँ से. सो fx हमारा था x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. सो f 0 0 हो जाएगा. f 1/2 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1/2 इंटू माइनस हाफ माइनस का 3/2. So this is 3/8. So this implies 3c square minus 6c plus 2 equal to f half की वैल्यू आ रही है 3/8 minus 0/1/2. So this is equal to 3/8 into 2/1. So 3c square minus 6c plus 2 equal to 3/4. 3/4 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं. 3c square minus 6c plus 2 minus 3/4 equal to 0. 3c square minus 6c plus 5/4 equal to 0. 4 LCM ले लेते हैं. So 12c square minus 24c plus 5 equal to 0. 12c square minus 24c plus 5 equal to 0. So solve करते हैं. So c is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. So minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a.
2 into 12. So 24 plus minus square root 576 minus 240 by 24. 24 plus minus square root 336 by 24. So simplify कर लेते हैं. 168, 84, 42, 21, 3 sevens are 7 ones are. So ये बन जाएगा 4 square root 21. 24 plus minus 4 square root 21 by 24. So 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 plus minus square root 21 by 6. ठीक है. सो C की वैल्यू या तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 21 बाई 6 हो सकती है या फिर C इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 21 बाई 6. और हमारा इंटरवल क्या है? C बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 0, 1 बाई 2 को. क्लियरली 1 प्लस समथिंग वैल्यू तो हाफ को एक्सीड कर जाएगी. सो दिस विल नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0, 1 बाई 2. सो दिस बिलोंग्स टू 0, 1 बाई 2. So hence Lagrange's mean value theorem is verified. Question number 6. Fx is equals to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 in closed interval 0, 4. So fx continuous होगा क्योंकि product of polynomials है. As fx is a product of polynomials, therefore it is continuous in closed interval 0, 4. Second, f dash x निकालते हैं. x minus 1 as it is, sorry x minus 1 का डेरिवेटिव into x minus 2 into x minus 3 as it is, plus x minus 1 as it is, x minus 2 का डेरिवेटिव 1 into x minus 3, plus x minus 1 into x minus 2 as it is into x minus 3 का डेरिवेटिव 1. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2. तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर minus 12x plus 11. So fx is differentiable in open interval 0, 4. Therefore, by Lagrange's mean value theorem, there exists C which belong to open interval 0, 4 such that f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a. f dash c क्या हो जाएगा? 3c square minus 12c plus 11 equal to f4 minus f0 by b minus a 4 minus 0. fx क्या था? x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. So f0. 0 minus 1 minus 1, 0 minus 2 minus 2, 0 minus 3 minus 3. So this is equal to minus 6. f4, 4 minus 1, 3, 4 minus 2, 2, 4 minus 3, 1. So this is equal to 6. So this implies 3c square minus 12c plus 11 equal to f4
6 minus minus 6 plus 6 by 4. So 12 by 4 is equals to 3. अब 3 को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं. 3c square minus 12c plus 11 minus 3 equal to 0. So this implies 3c square minus 12c plus 8 equal to 0. So c is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. 12 plus minus square root 144 minus 96 by 6. 12 plus minus square root 48 by 6. Square root 48 को हम लिख सकते हैं 4 root 3 by 6. 6 से डिवाइड करा, सो 2 प्लस माइनस 2 by 3 स्क्वायर रूट 3. सी की दो वैल्यू आ रही है, या तो 2 प्लस 2 by 3 स्क्वायर रूट 3 या फिर 2 माइनस 2 by 3 स्क्वायर रूट 3. और सी किसको बिलोंग करना चाहिए, हमारा ओपन इंटरवल 0,4 को बिलोंग करना चाहिए. सो क्लियरली दोनों ही वैल्यूज ओपन इंटरवल 0,4 को बिलोंग कर रही हैं. सो हेंस Lagrange's mean value theorem is verified. कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम. तो भी आपने ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. ठीक है, पूछे जाते हैं Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम से कुछ इनइक्वालिटीज पूछी जाएंगी. आपको बोला जाएगा कि Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करते हुए उनको प्रूव करना है. जैसे एग्जाम्पल 3 था, इंपॉर्टेंट है, PYQ में आया हुआ है, काफी बार आया हुआ है इनफैक्ट. यूजिंग Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम show that x upon 1 plus x is less than log 1 plus x less than x where x is greater than 0. Hence show that zero less than 1 upon log 1 plus x minus 1 upon x is less than 1 where x is greater than 0. So solution देखते हैं. यहाँ पे fx फंक्शन है हमारा log 1 plus x. So let function fx is equals to log 1 plus x in the closed interval 0, x. Now log फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा, as fx is a logarithmic function so it is continuous in closed interval 0, x. Also f dash x निकालते हैं, f dash x will be 1 by 1 plus x. इसका डिफरेंशिएशन करा है बस मैंने. So this is also defined in open interval 0, x. Therefore fx is differentiable in open interval 0, x. So hence by Lagrange's mean value theorem there exists C which belong to open interval 0, x such that f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a.
सो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारा, log 1 प्लस एक्स। एफ जीरो की वैल्यू निकालेंगे, सो log 1 प्लस जीरो, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। सो दिस इम्प्लाइज 1/1 प्लस सी इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। सो यहां से log 1 प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस सी। सो पहली इनइक्वालिटी मैंने क्या प्रूव करनी है कि x बाय 1 प्लस एक्स इज लेस देन log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स। सो इसको पहले प्रूव करते हैं। नाउ जो c की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है, c हमारा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0, x को। इसका मतलब क्या होता है कि जो c है वो 0 से बड़ा है पर x से छोटा है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे हमेशा, 0 लेस देन c लेस देन x। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस सी है, सो इस इनइक्वालिटी में थॉरोली 1 ऐड कर देंगे। 1 लेस देन 1 प्लस सी लेस देन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे 1/1 प्लस सी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो 1 ग्रेटर देन 1/1 प्लस सी ग्रेटर देन 1/1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस सी था, तो क्या करेंगे हम, थॉरोली x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x ग्रेटर देन x बाय 1 प्लस सी ग्रेटर देन x बाय 1 प्लस एक्स। सो इसको इस तरीके से मैं लिख देती हूँ, x बाय 1 प्लस एक्स इज लेस देन x बाय 1 प्लस सी लेस देन x। ठीक है, x बाय 1 प्लस सी किसके इक्वल है, यहाँ पे log 1 प्लस एक्स के इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। सो बाय इक्वेशन 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स इज लेस देन log 1 प्लस एक्स लेस देन x। सो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमने यही प्रूव करनी थी। सो हेंस शोड। सेकेंड इनइक्वालिटी मैंने क्या दिखानी है, सेकेंड इनइक्वालिटी में दिखाना है कि 0 लेस देन 1 बाय log 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज लेस देन एक्स। ठीक है, सो इसके लिए भी हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सो 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स है, तो इसी पिछली वाली इनइक्वालिटी जो हमने प्रूव करी है इसका रेसिप्रोकल ले लो। सो 1 प्लस एक्स बाय एक्स इज ग्रेटर देन 1 बाय log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1 बाय एक्स। रेसिप्रोकल लेने से जो लेस देन था वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या है, 1 बाय log 1 प्लस एक्स है और यहाँ है माइनस 1 बाय एक्स। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 बाय एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 बाय log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1 बाय एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, थॉरोली 1 बाय एक्स को माइनस कर देते हैं। सो 1 बाय एक्स को माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहां से 1 बचेगा, 1 ग्रेटर देन 1 बाय log 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स 0। सो दिस कैन बी रिटन एज 0 लेस देन 1 बाय log 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स लेस देन 1। सेकेंड वाली यही इनइक्वालिटी हमने प्रूव करनी थी फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए। हेंस शोड। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस आए थे उसको डिस्कस करते हैं। सो एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चंस हैं इनइक्वालिटी पर, दोनों ही पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग Lagrange's mean value theorem to prove that one plus x is less than e raised to power x
less than 1 plus x e raised to power x, where x is greater than 0. Also, Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम को फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं कैलकुलस में. यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम. इन केस कभी Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम की जगह ये लिखा आ जाए कि यूजिंग फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम हमने करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम को ही फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं. सो ये वाला हम इनइक्वालिटी प्रूव करते हैं. सो सोल्यूशन, अब यहाँ पे फंक्शन है क्या है हमारे पास, e रेज टू पावर x. सो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x and x belongs to closed interval 0, x. Now exponential function है तो continuous है. So as f is an exponential function, so it is continuous in closed interval 0, x. Also f dash x निकालते हैं तो क्या आएगा, e raised to power x, which is differentiable in open interval 0, x. Therefore, by Lagrange's mean value theorem, there exists C which belong to open interval 0, x such that f dash C is equals to fb minus fa upon b minus a. So this implies f dash c क्या हो जाएगा, e raised to power c equal to fb minus fa, fx minus f0 by x minus 0. fx हमारा e raised to power x है और f0 यानी कि e raised to power 0 is 1 minus 1 by x. So this implies e raised to power x minus 1 by x किसके इक्वल आ रहा है, e raised to power c के इक्वल आ रहा है. नाउ हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है, 0 लेस देन c लेस देन x. c हमारा ओपन इंटरवल 0, x को बिलोंग कर रहा है. दिस मीन्स c किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और x के बीच में, यानी कि c 0 से बड़ा है और x से छोटा है. अब यहाँ पे क्या है, e raised to power c है. सो हम क्या करेंगे, थॉरली e raised to power 0 लेस देन e raised to power c लेस देन e raised to power x. ठीक है. नाउ e raised to power c किसके इक्वल है, e raised to power x minus 1 by x के इक्वल है. Therefore by 1 e raised to power 0 is 1 less than e raised to power c, e raised to power x minus 1 by x लेस देन e रेज टू पावर x. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं. सो मल्टीप्लाइंग x थॉरली, सो क्या बन जाएगा, x लेस देन e रेज टू पावर x माइनस 1 लेस देन x e रेज टू पावर x. और फॉर्म मुझे चाहिए थे, क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स लेस देन e रेज टू पावर x लेस देन 1 प्लस x e रेज टू पावर x. सो अब क्या करते हैं, एडिंग 1. सो वी गेट 1 प्लस एक्स लेस देन e रेज टू पावर x लेस देन 1 प्लस x e रेज टू पावर x. सो ये इनइक्वालिटी भी हमारी प्रूव हो गई, हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में है, बाय मीन वैल्यू थ्योरम prove that x upon 1 plus x square less than tan inverse x less than x where x is greater than 0. So solution,
let fx function is equals to tan inverse x and x belongs to closed interval 0 comma x. So fx हमारा inverse function है, tan inverse x है. So as fx is an inverse function और 0 से x के बीच में इसकी वैल्यूज एग्जिस्ट भी करेंगी, therefore fx is continuous in closed interval 0 comma x. सेकेंड चीज fx डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल 0 comma x में. सो f dash x निकाला, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x is 1 by 1 plus x square. So clearly for x belongs to open interval 0 comma x, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट करेंगी. Therefore fx is differentiable in open interval 0 comma x. So Lagrange's mean value theorem की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. Hence by Lagrange's mean value theorem there exists C which belong to open interval 0 comma x such that f dash C is equals to fb minus fa upon b minus a. So f dash C 1 by 1 plus c square equal to fx minus f0 by x minus 0. So fx क्या है, tan inverse x minus f0, tan inverse 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 by x. So this implies 1 by 1 plus c square is equals to tan inverse x by x. ठीक है. Now 0 less than c less than x. ठीक है. अब यहाँ पे c स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग. सो 0 स्क्वायर 0 लेस देन c स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर. फिर 1 प्लस c स्क्वायर है तो 1 ऐड कर देंगे, 1 लेस देन 1 प्लस c स्क्वायर लेस देन 1 प्लस x स्क्वायर. फिर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे. 1 ग्रेटर देन 1 बाय 1 प्लस c स्क्वायर ग्रेटर देन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर. 1 बाय 1 प्लस c स्क्वायर किसके इक्वल है, tan इनवर्स x बाय x के इक्वल है. सो 1 ग्रेटर देन tan इनवर्स x बाय x ग्रेटर देन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर यूजिंग 1. सो दिस इम्प्लाइज x मल्टीप्लाई कर देते हैं, x ग्रेटर देन tan इनवर्स x ग्रेटर देन x बाय 1 प्लस x स्क्वायर. और हमें प्रूफ क्या करना था, x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन tan इनवर्स x लेस देन x फॉर x ग्रेटर देन 0. सो ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड. इसके बाद कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं. नेक्स्ट सेक्शन 7.6 कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम. Cauchy's mean value theorem is also known as second mean value theorem. So basically जो मैंने आपको Lagrange's mean value theorem बताया उसी की एक्सटेंशन है Cauchy's mean value theorem. क्या कहती है, यहाँ पे अब हमारे पास दो फंक्शन होंगे, fx and gx are both continuous in closed interval ab. Second thing, f dash x and g dash x are differentiable in open interval ab. Third thing, g dash x is non-zero anywhere in open interval ab. ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. Then there is a value of x, say c, between a and b such that fb minus fa upon gb minus ga equal to f dash c upon g dash c. So example के थ्रू देखते हैं इसको. First example, if fx is equals to x square and phi x is equals to x, then verify Cauchy's
mean value theorem for the given functions in the interval closed interval AB. So solution, first property क्या satisfy होनी चाहिए, fx and gx are both continuous in closed interval AB. So clearly दोनों ही कैसे हैं, polynomial type के हैं तो continuous होंगे. So as both fx and gx, fx and phi x कह देते हैं, are polynomial functions, therefore fx and phi x are continuous in closed interval AB. So first condition हमारी satisfy हो गई. Second condition, f dash x is equals to 2x and phi dash x is equals to 1. So they are differentiable in open interval a comma b. Third condition है g dash x is non-zero anywhere in open interval a b. Clearly phi dash x किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, which is non-zero in open interval a b. Therefore by Cauchy's mean value theorem there exists C which belong to open interval a comma b such that fb minus fa upon phi b minus phi a is equals to f dash c upon phi dash c. So fb minus fa, fb क्या है, मतलब फंक्शन fx क्या है, x स्क्वायर है. So b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन phi b minus phi a. Phi x फंक्शन है x, so b minus a is equals to f dash c 2c अपॉन phi dash c 1. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, b minus a into b plus a अपॉन b minus a is equals to 2c. b minus a से b minus a कैंसिल हो गया, so b plus a is equals to 2c. So c is equals to b plus a upon 2. So which clearly belong to open interval AB. So hence Cauchy's mean value theorem is verified. Next example, example 2. If in Cauchy's mean value theorem fx is equals to 1 by x square and gx is equals to 1 by x, then c is the harmonic mean of a and b. इंपॉर्टेंट है, PYQ में पूछा हुआ है. हार्मोनिक मीन होने का मतलब क्या है, C इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस b हमारी C की वैल्यू आएगी. देखते हैं. सो fx हमारा कंटिन्यूस होगा, gx भी कंटिन्यूस होगा. बोथ fx एंड gx आर कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स हमारा है एक्स रेज टू पावर -2, तो ये आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब. जी डैश एक्स आएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर. सो क्लियरली ये भी हमारे कैसे होंगे, एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो बोथ आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. So by Cauchy's
mean value theorem, there exist C which belong to open interval a comma b such that fb minus fa upon gb minus ga is equals to f dash c upon g dash c. So fb minus fa, fx फंक्शन क्या है 1/x स्क्वायर है, so 1/b स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर gb, so gx फंक्शन 1/x था, तो 1/b माइनस 1/a इक्वल टू f dash c माइनस 2/c क्यूब अपॉन g dash c माइनस 1/c स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी. सो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम न्यूमरेटर में, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 2/c क्यूब इंटू माइनस c स्क्वायर. सो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक c यहाँ से बच जाएगा हमारा. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू ए बी अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 2/c. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a माइनस b लिख देते हैं अपॉन ए बी इंटू a माइनस b इक्वल टू 2/c. a माइनस b और a माइनस b कैंसिल, सो a प्लस b अपॉन इस 2 को भी यहाँ पे ले आते हैं 2ab इक्वल टू 1/c. हमें तो c की वैल्यू चाहिए थी तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे. सो c इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस b विच इज द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b. जैसे अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, वैसे ये हार्मोनिक मीन है a और b का. अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन आए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 17. इनको डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द C of Cauchy's mean value theorem for the following functions. So question number 14 है fx is equals to 1/x square, gx is equals to 1/x in closed interval ab. ठीक है, 14 वाला तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा ही दिया, सेम था जो भी एग्जाम्पल करा है, सेम है बिल्कुल. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 ये वाला कर लेते हैं. fx is equals to sin x and gx is equals to cos x in closed interval minus pi/2, 0. सो c की वैल्यू निकालनी है, तो इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं. f डैश x आ जाएगा cos x, g डैश x क्या आ जाएगा माइनस sin x. Therefore, by Cauchy's mean value theorem, there exists C which belong to open interval a comma b और interval यहाँ पे है minus pi/2, 0, such that fb minus fa upon gb minus ga is equals to f dash c upon g dash c. So fb minus fa, f0 minus f minus pi/2 upon gb, g0 minus g pi/2. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू f डैश c. f डैश c हो जाएगा cos c अपॉन g डैश c माइनस साइन c. सो f0 की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस f माइनस pi/2, सो साइन माइनस pi/2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1. ठीक है,
अपॉन g0. सो g0 gx हमारा था cos x, सो cos 0 0 माइनस g पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 0 इक्वल टू माइनस cos c अपॉन साइन c. सो यहाँ से आ जाएगा 1 की इक्वल माइनस cos c अपॉन साइन c. सो इसको में से लिख लेते हैं साइन c इज इक्वल्स टू माइनस cos c. साइन c अपॉन cos c इज इक्वल्स टू माइनस 1. तो tan c इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो c इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 4. तो वैल्यू आ रही है माइनस पाई बाय 4. ठीक है, अब माइनस पाई बाय 4 क्लियरली हमारा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 0 को बिलोंग करता है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन 17 है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स. और अगर आपको कभी इंटरवल ना दिया हो तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी लेके चलना. ठीक है, सो सोल्यूशन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स एंड जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स. देयरफॉर बाय कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम there exists C which belong to open interval a comma b such that fb minus fa upon gb minus ga is equals to f dash c upon g dash c. So fb minus fa, so fx e raised to power x है, e raised to power b minus e raised to power a upon e raised to power minus b minus e raised to power minus a इक्वल टू एफ डैश सी ई रेज टू पावर सी अपॉन माइनस ई रेज टू पावर माइनस सी. ठीक है, सो ई रेज टू पावर माइनस सी को न्यूमरेटर में ले जाएंगे और ई रेज टू पावर बी माइनस ई रेज टू पावर ए अपॉन यहाँ से 1 अपॉन ई रेज टू पावर बी लिख देते हैं माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर ए लिख देते हैं इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर 2c. ई रेज टू पावर बी माइनस ई रेज टू पावर ए, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो ई रेज टू पावर ए इंटू ई रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर ए माइनस ई रेज टू पावर बी इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर 2c. सो दिस इम्प्लाइज ई रेज टू पावर बी माइनस ई रेज टू पावर ए अपॉन यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं. सो ई रेज टू पावर बी माइनस ई रेज टू पावर ए अपॉन ई रेज टू पावर ए ई रेज टू पावर बी इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर 2c. तो ये कैंसिल हो गया. सो यहाँ से आ रहा है माइनस ई रेज टू पावर ए इंटू ए रेज टू पावर बी, तो इसको ई रेज टू पावर ए प्लस बी लिख सकते हैं. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2c. सो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2 विच क्लियरली बिलोंग टू ओपन इंटरवल a कॉमा b. ठीक है, सो यहीं तक था कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम. अब नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम टू मोनोटोनिक फंक्शंस. लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस सेक्शन से. सो इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन रहती है कि फंक्शन कब हमारा इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा. लेट एफ बी अ मैपिंग फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी टू आर, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी. मतलब ये है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा on open interval AB. Then first thing, f is increasing on open interval AB if and only if f dash x is greater than equal to 0 for all x belongs to open interval AB. Second thing, fx decreasing कब होगा open interval AB पर if and only if f dash x is less than equal to 0 for all x belongs to open interval AB. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का, काफी बार आया हुआ है. सेपरेट the intervals in which the polynomial (2x cube minus 15x square
प्लस 36x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि इंटरवल फाइंड करना है कि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। सो सोल्यूशन देखते हैं। लेट fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव निकाला। सो f डैश x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। सो पुट f डैश x इक्वल टू 0। सो दिस implies 6 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 implies x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। So x square minus 3x minus 2x plus 6 equal to 0 implies x into x minus 3 minus 2 bracket x minus 3 equal to 0. x minus 2 into x minus 3 equal to 0. So x की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं 2 और x equal to 3। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। So these are critical points। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे f डैश x कहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वो चेक करेंगे, कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव। और f डैश x है क्या हमारा f डैश x इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो इंटरवल्स यहाँ से क्या क्या पॉसिबल हैं, किस किस इंटरवल पे हम चेक करेंगे। हमारे इंटरवल्स आएंगे माइनस इन्फिनिटी से 2, देन 2 to 3 एंड देन 3 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में अगर कोई भी मैंने वैल्यू ली, मान लो अगर मैंने 1 ले लिया, सो 1 यहाँ पे अगर पुट करें, सो एट x इज इक्वल्स टू 1। सो f डैश x की वैल्यू कैसी रहेगी 6 इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 1 प्लस 6। सो 6 इंटू माइनस 4 प्लस 6, तो ये आ रही है हमारी 12 विच इज पॉजिटिव, यानी कि इस इंटरवल में कैसा है f डैश x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि इंक्रीजिंग। फिर 2 से 3 के बीच में देखा 2.5 पुट कर लेते हैं। सो 2.5 पे अगर चेक करा 6 इंटू 2.5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.5 प्लस 6। सो 6 इंटू 2.5 स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, सो 6.25 माइनस 25 इंटू 5 इज 125, सो 12.5 प्लस 6। सो 6 इंटू ये बन जाएगा 6 प्लस 6.25 12.25 माइनस 12.5, क्लियरली एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यानी कि 2 से 3 के बीच में कैसा है डिक्रीजिंग है, f डैश x हमारा लेस देन 0 आ रहा है यानी कि डिक्रीजिंग। फिर 3 से इन्फिनिटी के बीच में देखते हैं। सो f डैश 3 इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 से इन्फिनिटी ले रहे हैं तो f डैश 4 x इक्वल टू 4 पे वैल्यू चेक करते हैं। सो 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, तो क्लियरली ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 6 इंटू ये 16 प्लस 6 22 माइनस 20, क्लियरली पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सो 3 से इन्फिनिटी के बीच में कैसा है ये पॉजिटिव है। सो बस इस तरीके से हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना होता है। स्टेप्स दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, फिर f डैश x इक्वल टू 0 पुट करेंगे टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्या आए हैं 2 और 3, तो इंटरवल्स हमारे बन जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से 2, 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, फिर इस पे हम चेक कर लेंगे f डैश x कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें पता लग जाएगा। देयरफॉर fx इज
इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 2 and 3 to infinity, and decreasing in 2 to 3. सो यहाँ पे हमारा सेक्शन ओवर हो गया. सेक्शन 7.5 और 7.6 हमने कवर कर लिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से देख लेना. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.